तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक कौन सा डिस्कस होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारी बेस बुक NCERT और ये टॉपिक रिलेट करता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स, और इसका पेज नंबर 77। यहाँ से हम लोगों का डिस्कशन होगा और इसके जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, उसकी सारी बात ये हमने बना रखी है। और इसके बेसिस पे हम इसके जो इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फीचर्स हैं वो तुम लोगों से डिस्कस करेंगे, और उनको दिमाग में रखते हुए इस में जो डिटेल दे रखा है बुक में, इसको अच्छे से पढ़ डालिए और आप लोगों को समझ में आएगा। और हम इसकी शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। So the topic is interest on capital. इससे related a lot of material has already been discussed, that what is the nature of interest on capital, when it is allowed, what are the general entries related to it, where it is shown in your books of account. ये बहुत सारी बातें हम लोगों की डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन हम फिर से उन चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे तुम लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाउ इट अफेक्ट्स योर कैपिटल? इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ओके, इफ कैपिटल इज मेंटेन्ड on the basis of capital account is maintained in two methods are there, fixed capital method and fluctuating capital method. If you are following fixed capital method, in that case it is transferred to which account? Current account. And if it is you are maintaining fluctuating capital account of the partner, in that case capital account. So the basic entry is given, you can revise it. Interest on capital debit to partners capital account in case you are following fluctuating capital account, and if you are maintaining fixed capital method of partners capital account, in that case interest on capital is not transferred to partners capital account, right? In that case it is transferred to partners current account. Is it clear? If fixed capital method is followed, in that case interest on capital goes to partners current account, and if fluctuating capital method is followed, in that case all the transactions related to partners are transferred to partners capital account only, right? Leaving the transactions related to लोन गिवन बाय पार्टनर, है ना, उसके लिए बताया था ना कि इट विल नॉट अफेक्ट, नो इफेक्ट, है ना, कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट पे उसके इफेक्ट्स नहीं आते। तो दिस इज द बेसिक एंट्री। एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट्स वाई इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, right? So the journal entry is profit and loss appropriation account debit to interest on capital. Clear? In case of charge against profit, any transactions that is a charge against profit, in that case what happens? It is transferred to profit and loss account, not in profit and loss appropriation account. It is being transferred to profit and loss appropriation account because interest on capital is an appropriation of profit, not charge against profit. So this is the basic thing. One more thing I would like to remind you that partners are, first lines ये हम पहले भी इसको बता चुके हैं, partners are not entitled to get any remuneration from firm. Remuneration, it covers interest on capital, salary to partner, bonus, commission to partner, right? So partner cannot claim any remuneration from the partnership firm except equal profit sharing.
राइट, अनलेस इट इज़ गिवन इन पार्टनरशिप डीड आर एग्रीमेंट। यानी पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा, अगर मान लिया किसी फर्म में, जैसे आप लोग इसमें बहुत से सवाल करोगे, इसमें वो देता है कि देयर इज़ नो डीड, देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, और एक पार्टनर कोई सैलरी क्लेम करता है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम करता है, तो क्या उसको अलाउ करोगे? बिल्कुल अलाउ नहीं करोगे। रीज़न, हमारा जो एक्ट कहता है वो कहता है कि पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम फर्म एक्सेप्ट इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग अनलेस इट इज़ गिवन इन पार्टनरशिप डीड, है ना। यानी वो चीज़ें हम केवल किस केस में अलाउ कर सकते हैं? अगर हमारी डीड कहती है ना। इवन डीड में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, 5:3:2 में दे रखा है, तो आप 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर डीड कुछ नहीं कहती, डीड है ही नहीं, इन दैट केस क्या करोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इन चीज़ों को दिमाग में क्लियर रखो, और ये जो बात आप समझेंगे इनमें, यही जो तुम्हारे जो इसमें कई सारे पेजेस दे रखे हैं, इसमें पूरे में यही बात है। और इसको आप NCERT से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और या कोई भी बुक हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेसिक इसकी स्पेशलिटीज़ हैं उन स्पेशलिटीज़ को ध्यान से समझ लो। तो स्पेशल फीचर में पहला क्या लिखा है? अलाउड टू पार्टनर्स ओनली इफ़ एग्रीड या गिवन इन डीड, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इट विल नॉट बी अलाउड, है ना। पार्टनर्स क्लेम करते हैं कि भाई हमारी तो कैपिटल बहुत ज़्यादा लगी हुई, कल जो भी है, बट इट इज़ नॉट एग्रीड, सो इट विल नॉट बी अलाउड। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट चार्ज, क्योंकि प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो कुछ भी चार्ज होता है, ये पिछले वीडियोस में बताया गया था, है ना। प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो कुछ भी चार्ज होता है वो कहाँ से होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन में नहीं। अप्रोप्रिएशन का मतलब सिंपल होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तभी देखो आगे क्या लिखा है कि इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट चार्ज, सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आगे इसमें क्वेश्चंस देखोगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी पे, कि अगर प्रॉफिट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है या कम है तो ओनली टू दैट एक्सटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड, है ना। और अगर प्रॉफिट्स हमारे पास सफिशिएंट हैं तो अलाउ करिए उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, बाकी बाद में जो बचता है ना, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। अब जैसे इसकी एक थोड़ी सी बात कर सकते हैं। मान लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 पार्टनर्स का बनता है 60,000, ठीक। 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर दिखाओगे। मान लिया इक्वल है सबका, ए का भी 20,000, बी का भी 20,000, सी का भी 20,000, ठीक। और उधर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट लॉस से नीचे, वो है 30,000 केवल। कितना है? 30,000। और हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना कर, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाल के रखा है? 60,000। तो हम क्या करेंगे, उस 30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन विच प्रोपोर्शन? 20:20:20। तो क्या हो गया? 1:1:1। तो क्या बना? 1/3 1/3 1/3 किस अमाउंट का? 30,000 का। यानी जब ये अप्रोप्रिएशन है, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो उतनी अमाउंट का कर सकते हो जितनी पैसे आपके पास हैं। अरे जब आपकी जेब में केवल 30,000 रुपये हैं, है ना, और 60,000 रुपये इधर क्लेम बनता है पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो कैसे 30,000 से आप 60,000 दे सकते हो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट तो उतना ही कर सकते हो जितना आपके पास है कितना? 30,000। और पार्टनर्स का इंटरेस्ट बनता है 20,000 तीनों का। तो क्या करेंगे, इसको उसी प्रोपोर्शन में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और नील हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों का, है ना। तभी ये बताया गया कि इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, है ना। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो क्वेश्चंस हम इसमें आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करा देंगे या आपको बहुत आसानी होगी उसको सॉल्व करने। तो दूसरी बात ये हुई इसकी स्पेशलिटी। नेक्स्ट क्या है? अलाउड ऑन इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। अब ज़रा एक बात हमको बताना, किसी पार्टनर की स्टार्टिंग में कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़, थ्रू आउट द ईयर कितनी है? 2 लाख रुपीज़, और 10% उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लिया एग्री हुआ है, तो पूरी साल का
2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000 है ना? अच्छा, इसी पार्टनर का मान लिया स्टार्टिंग में उसका 2 लाख था, आफ्टर 6 मंथ्स उसने 50,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ अलग कैलकुलेट होगा ना। तो हम क्या करते हैं उस केस में, 2 लाख का पूरी ईयर का और 50,000 का कितना, 6 मंथ्स का, क्योंकि उसने आफ्टर 6 मंथ्स 50,000 और इन्वेस्ट किए हैं। तो जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल कितनी रही, 2 लाख फॉर फुल ईयर एंड 50,000 फॉर 6 मंथ्स, है ना, क्योंकि 6 मंथ्स तक उसका पैसा उसमें बना रहा, है ना, क्योंकि उसने आफ्टर 6 मंथ्स इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और जोड़ दोगे, ठीक है। थर्ड केस कि उसका स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीस था, उसने मान लिया 1 अक्टूबर में उसमें से 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। तो अब उसकी इफेक्टिव कैपिटल कैसे देखोगे, 2 लाख, दोनों दो तीन तरीके हैं इसके, कैसे सॉल्व करोगे। 2 लाख का पूरे 1 साल का निकाल लिया, उसके बाद 2 लाख पूरी 1 साल तो रहा नहीं, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को 1 लाख विड्रॉ किया है। तो उस 1 लाख को अक्टूबर से कितने पीरियड उसका इफेक्टिव रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 लाख का 6 मंथ्स का और निकालोगे और जो इंटरेस्ट आया है उससे उसको लेस कर दिया जाएगा, है ना। तो एक वो तरीका है, वैसे कैलकुलेट कर लोगे। एक और तरीका देख लो कि स्टार्टिंग से उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया, 1 अक्टूबर को उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट कहाँ तक निकला, 1 अक्टूबर तक, है ना। लेकिन इस 1 अक्टूबर में जब उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो उसकी इफेक्टिव कैपिटल 1 लाख ही तो बची। अब उस 1 लाख का फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, चाहे फुल ईयर का निकाल के और जिस पीरियड में उसने विड्रॉ किया वो कितना पीरियड तक रहा, है ना, वो करते हुए हम उस इंटरेस्ट को माइनस कर दें, या फिर उसकी इफेक्टिव कैपिटल देखें कि फर्स्ट 6 मंथ्स इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स ऑन 2 लाख, नेक्स्ट 6 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन 1 लाख ओनली। क्लियर है ना। तो इसमें और क्या देखते हैं कि अलाउड ऑन इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब हम इफेक्टिव कैपिटल की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ें ध्यान देनी होती है कि उसने एडिशनल कैपिटल क्या कुछ इन्वेस्ट की, एडिशनल या फर्दर कैपिटल, ऐसा कुछ उसने अगर इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग द ईयर, सो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ऑल्सो। क्लियर। अगर उसने विड्रॉ किया कैपिटल का, यानी उसने जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो पूरी साल उतनी अमाउंट नहीं रही, है ना, तो जिस डेट से उसने विड्रॉ किया यानी कैपिटल को कम किया, तो कितनी अमाउंट उसने विड्रॉ की, उस अमाउंट का हम अलग से इंटरेस्ट निकाल के लेस कर सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कितने पीरियड कितना अमाउंट उसका इन्वेस्टेड रहा, उस पर हम उतने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते जाते हैं। फिर इसका देखो फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, नॉर्मल है इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट, जो भी रेट दिया हो 6%, 8%, 10% जो भी दिया हो, तो रेट अपॉन 100। परसेंट का क्या मतलब होता है, परसेंटेज इज बेस्ड ऑन 100, सो रेट अपॉन 100। फिर कितने पीरियड, फुल ईयर का निकालोगे तो पीरियड मंथ्स में कितना, 12/12 यानी 1 हो गया, है ना। लेकिन अगर मान लिया वो उसका वो 6 मंथ्स तक इन्वेस्टेड है या 10 मंथ्स तक उतना पैसा इन्वेस्टेड है, उसके बाद वो कुछ माइनस करता है या प्लस करता है तो हमारी इफेक्टिव कैपिटल बदल जाती है। तो अगर ऐसा कुछ करते हो तो उस हिसाब से हम मंथ्स लिखते हुए और नीचे 12 और ये आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ गया, कैलकुलेट हो गया, फिर उसकी फर्दर जो हमारी नॉर्मल एंट्रीज़ हैं ये और ये हम पास करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो अगले पीरियड में कि अगले पेजेज में इसको कि किस तरीके से दिया है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें थोड़ा ऊपर रीड करते हैं, देखियो फर्स्ट लाइन, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। When the deed specifically provides for it,
interest on capital is credited to partners, partner credit हुआ, is credited to partners at the agreed rate with reference to the time period for which the capital remained in the business during a financial year, है ना। यानी इफेक्टिव कैपिटल पीरियड पे ध्यान दोगे कि कितने पीरियड उसका कितना पैसा इन्वेस्टेड रहा, ठीक है। और इसने बताया है आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर इन 2 सिचुएशंस। ये कंसेप्चुअल बात है, थोड़ी कंसेप्ट की बात समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन मोस्ट ऑफ द केसेस कब अलाउ किया जाता है। भाई आखिर ये बात हो कि भाई हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दें, ठीक। तो उसकी 2 सिचुएशन बनती हैं। क्या बनती हैं? नंबर 1 क्या लिखा है, व्हेन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब मान लिया ABC हैं, ठीक है, इनके बीच ये हुआ कि ये लोग भाई ABC हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग 1/3 1/3 और 1/3। लेकिन इसने कैपिटल लगाई, एक ने कैपिटल लगाई 10 लाख, एक ने लगाई 5 लाख और एक ने लगाई 2 लाख। ये पॉसिबल है बहुत आराम से, कोई भी कितनी कैपिटल लगा रहा है ना, क्योंकि सबके अपने अपने अलग कंट्रीब्यूशन होते हैं। अब जैसे मान लिया इसने 2 लाख इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसको मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज है, ये बिज़नेस को बहुत अच्छे से देख सकता है, तो वो कहता है कि भाई हम तो 2 लाख रुपए लगा सकते हैं और तो हमारे पास पैसा नहीं है। इसके पास क्या है, इसके पास कैपिटल है, पैसा है, लेकिन ये टाइम नहीं दे सकता या इसको उतनी बिजनेस करने की नॉलेज नहीं है ना। तो इसमें ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि इनकी कैपिटल बराबर हो, है ना। कैपिटल में खूब फ्लक्चुएशंस, खूब वेरिएशंस हो सकते हैं। इवन कोई पार्टनर बिना कैपिटल के भी फर्म में पार्टनर बन सकता है, ये भी बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि उसको पैसा लगाना ही लगाना है ना, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसकी नॉलेज हो सकती है, उसका नेटवर्क हो सकता है ना। वो सब भी कंसीडर किया जाता है कि नहीं, इस पार्टनर की वजह से हमारी फर्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, हमारी फर्म बहुत ग्रो करेगी। तो वो दूसरे पक्ष लोग कहते हैं कि अरे भाई आपको पूंजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस फर्म में हमारी जुड़ जाइए, हम आपको 1/3 प्रॉफिट भी देंगे और आप रहिए, है ना। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी दैट एवरीवन हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, है ना। उसकी अपनी दूसरी, उसकी वैल्यूज़, उसकी क्वालिटीज़, उसकी नॉलेज, बहुत तरीके की चीज़ें उसकी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि पार्टनर्स ABC एग्री हुए कि भाई इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। लेकिन ये जो A है जिसने 10 लाख रुपए लगाए, इसको तो लगेगा ही, क्या लगेगा कि भाई हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉफिट मिल रहा बराबर, है ना। तो इन लोगों को थोड़ा एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए कि भाई उसको कुछ ऐसा फील ना हो, एक्स्ट्रा अमाउंट उसने लगा रखी है बिजनेस में, क्योंकि देखो इसी की कैपिटल इन दोनों से मिला के इवन ज़्यादा है इसकी कैपिटल, है ना। तो इसलिए इन केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अलाउ कर देते हैं। ऑब्वियस है कि ही विल गेट मोर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय ए इन दिस बिजनेस। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि जब उनकी अनइक्वल कैपिटल इन्वेस्टेड है तो एक उन लोगों ने अपना एग्रीमेंट किया कि भाई जिसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड टू पार्टनर्स। एक ये होता है उनके बीच में एक इक्वलिटी लाने के लिए, क्योंकि इसको भाई दिमाग में कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई हमने तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है, हैं, ये लोग तो हमारा शोषण किए हैं, तो ये चीज़ें ना लगे उसको। और दूसरा देखो केस क्या हो सकता है कि वेयर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग इज अनइक्वल। अब उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग अनइक्वल है और कैपिटल उन्होंने बराबर लगा रखी है, तो उन्होंने जो प्रॉफिट शेयरिंग की अनइक्वल कर रखी है वो इस बेसिस पे कर रखी है कि कौन भाई कितना उसमें टाइम देगा, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना एलिजिबल है ना, किसकी वजह से कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो भाई उसको ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा दो तो वो फर्म में पार्टनर बना रहेगा, है ना। तो इन केसेस में कि अगर कैपिटल इक्वल बट दिस इज नॉट इक्वल, इन दैट केस टू प्रोवाइड सम अदर मोटिवेशन टू पार्टनर्स, सम अदर इंसेंटिव टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू देम। क्योंकि हर एक पार्टनर को ये रहे
कि भाई हम लोगों का जो इधर अनइक्वल है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, वो तो सभी को देखो बराबर मिलता है ना। तो ये चीज़ें इन डिफरेंट टू कंडीशंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लोग एग्री करते हैं और अलाउ करते हैं पार्टनर्स को, है ना। और ऐसा वो पार्टनर्स के अपने एग्रीमेंट में, अपनी डीड में उसको लिख लेते हैं। क्लियर। फिर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसकी हम लोगों की बात हो चुकी है कि हम इसका ड्यू अलाउंस देते हैं कि किसकी कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड रही। चलिए, अब इसके बाद इसने कुछ और चीज़ें बताई हैं जो पेज नंबर 78 पे ये सारा डिस्कस हुआ है। तो हम लोगों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन में जो सारी चीज़ें बात करी है ना, उसी का यहाँ पे डिटेल और एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सवालों को आराम से कर सकते हो, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5। अब इलस्ट्रेशन 5 में इसमें कुछ इस तरीके से दिया है, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 80 है ना। इसको हम बाद में फिर से करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसने बताया कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज गिवन। कैपिटल का कौन सा बैलेंस दिया? क्लोजिंग बैलेंस। और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कब आया? कि जब उसके ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो गए, जैसे रिलेटेड टू ड्राइंग्स, ठीक है, और रिलेटेड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक बात बताना ध्यान से, हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दिया है, ठीक। एक किसी पार्टनर का है, मान लिया ए का है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया है। और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया, तब उसने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर इसने इतना विड्रॉ किया था और ड्यूरिंग द ईयर इसको इतने प्रॉफिट्स का हिस्सा मिला है, ठीक है। हमें अब आना कहाँ पे है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे। तो इसमें हम सीधा क्या करेंगे, जो कुछ उस क्लोजिंग बैलेंस में ऐड हुआ है उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। वेरी गुड। और जो कुछ हमने लेस कर रखा है उसको ऐड करेंगे, तो हम ओपनिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस इलस्ट्रेशन 5 में कुछ ऐसा ही है कि इसने क्लोजिंग बैलेंस दिया आफ्टर ट्रांसफर ऑफ दिस, है ना। तो हमने क्या किया, जो भी हमने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर उसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसने कैपिटल को बढ़ाया होगा ना। प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी। तो बढ़ाया होगा ना, तो हमने उसको लेस कर दिया। तो देखो दिया है लेस में, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ड्राइंग्स का क्या इफेक्ट रहा होगा? ड्राइंग से उसकी कैपिटल हमने क्या की होगी? रिड्यूस। तो वो हमने ऐड बैक कर दी। तो हम कैपिटल की किस अमाउंट पे पहुंच गए? जो ओपनिंग बैलेंस। और अगर उसने कुछ एडिशंस किए हैं, जैसे एक का पार्टनर का लिखा है क्रिस का कि उसने एडिशन किया, तो अगर उसने कुछ एडिशन किया कैपिटल में, तो क्लोजिंग बैलेंस तो ऐड होके आएगा ना। तो क्या करेंगे उसके लिए लेस कर देंगे। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पता चल गया। और जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ गया तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। और जिसने ये एडिशन कर रखा है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें हम देखेंगे कि किस पीरियड में उसने इतना अमाउंट दे रखा है। तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। फिर दोनों को ऐड। क्लियर है ना बात? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इफेक्टिव कैपिटल। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि आखिर कितना पैसा उसका इन्वेस्टेड रहा ड्यूरिंग द ईयर, और वो भी पैसा कैसे? इफेक्टिव ढंग से, है ना। कि उसने स्टार्टिंग में कितना था, फिर उसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ क्या प्लस किया है, या ड्यूरिंग द ईयर उसने कैपिटल से कुछ विड्रॉ किया है ना। कि कैपिटल विड्रॉल अलग होता है, ड्राइंग्स अलग होती है, दिमाग में रखना। ड्राइंग्स अलग और कैपिटल विड्रॉल्स अलग, है ना। तो उनको कंसीडर करते हुए उसकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, अब उसकी इफेक्टिव कैपिटल पे तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और दैट अमाउंट वुड बी ट्रीटेड अंडर दिस। डिफिकल्ट? बस, वेरी गुड। तो इसमें ये कर डालो भाई। और इसके देखो पेज नंबर 80 पे ही कुछ और दे रखा है, दो इसके जो पैराग्राफ्स दिए हैं इसको पढ़ते हैं। देखो क्या है ये, इससे पिछली बात आपको क्लियर हो जाएगी। समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स मे नॉट बी गिवन, जो हम लोगों का डिस्कस हुआ इसी की बात। इन सच ए सिचुएशन बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द ओपनिंग कैपिटल्स विल हैव टू बी वर्कड आउट with the help of partners closing capital
by marking necessary adjustments for additions and withdrawal of capital, है ना. Drawings share of profit or loss if already shown in the capital account of the partners. तो ये भी वही बात हो गई जो हम लोगों की डिस्कस हुई कि अगर ये चीज़ें उसमें इंक्लूसिव हैं, है ना, उसको उसने कंसीडर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तब आपका बैलेंस दे रखा है. तो इनसे हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल करते जाएंगे. अगर जो ऐड हुआ है उसको लेस कर देंगे, जो लेस हुआ है उसको ऐड कर देंगे. तो ये बात दे रखी है. नेक्स्ट इसका पैरा और देख लो. एज क्लेरिफाइड अर्लियर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ये भी वही बात हो गई. कौन सी, जो कहा गया कि इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन, है ना. इट इज़ अलाउड ओनली इफ प्रॉफिट इज अर्नड बाय द फर्म, ओनली व्हेन द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. हेंस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द ईयर द फर्म हैज़ इनकर्ड नेट लॉस, है ना. फर्म को लॉसेज हुई तो कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, बिकॉज अप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो कहाँ से आपको प्रॉफिट हुए नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे, हैं? जेब में कुछ है नहीं, बांटो क्या. Hence no interest will be allowed during the year the firm has incurred net loss, and if in a year, है ना, इसको भी ध्यान समझना, the profit of the firm is less than the amount due to partners as interest on capital. जैसा पहले हम लोगों की बात हुई थी कि interest on capital 60,000, profits available 30,000, so how it is distributed, है ना, वो वाली बात. The interest on the payment of interest will be restricted to the amount of profits, ठीक है. In that case the profit will be effectively distributed in the ratio of interest on capital of each partner, ठीक है. तो ये आपकी यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई बहुत अच्छे से. अब इसके बेसिस पे ये सारे पार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट हम इसमें कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जो टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दे रखे हैं सेट्स, इनको हम डिस्कस कर लें, है ना, स्टार्टिंग से, जिससे यहाँ तक का सारा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से थोड़ा बड़ा टॉपिक है. इसको समझ के करना है और बस अच्छे से करना है. चलिए, ओके, थैंक यू. और इसको ध्यान से पढ़ना है, और अगर कुछ समझ में आता है, मन लगा के इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और वीडियो को आप क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है. भाई ऐसे कैसे बात बनेगी. चलिए, ओके.